Good morning, dear students. Today we will have next size of limit and derivative, that is of derivative. First is definition. Suppose f is a real valued function and a is a point in its domain of definition. The derivative of fx at a is written as limit f of a plus h minus f of a over h, limit h tends to 0. Provided this limit exists, the derivative of f of x at a point is denoted by f dash of a. f dash a पर dash का साइन लग जाता है. Then the second definition is, suppose f is a real value function defined by f of x plus h minus f of x over h, limit h tends to 0. Whenever the limit exists is defined to be the derivative of f at x and is denoted by f dash x. So f dash x is limit h tends to 0 f of x plus h minus f of x over h. Now this is our first principle of derivative. So derivative sometimes denoted by sign f dash x, sometimes y dash, dy by dx, differentiation of function y with respect to x. The next is algebra of functions. Algebra of function is quite simple. Means if you are given two functions f and gx, then fx plus gx का अगर डेरिवेटिव लेना है, it means you have to take separate derivative, means d by dx of fx plus d by dx of gx. Similarly for division, d by dx of fx minus d by dx of gx. सम और डिफरेंस में तो सीधा साइन लग के डिफ्रेंशिएट हो जाता है, बट इन द टर्म्स ऑफ कोशेंट, when you take division or when you take product, they will be having different values. जैसे fx इंटू जी एक्स है, इसका डेरिवेटिव लेना है. सो दो फंक्शंस है, दोनों x में है और विद रिस्पेक्ट टू x ही डिफ्रेंशिएट करना है. तो क्या होगा, डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन सेकंड एज इट इज प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट एज इट इज डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकंड. First function, yeah, you can say first function as it is differentiation of second plus second as it is differentiation of first. Then quotient fx over gx अगर गिवन है तो डिनोमिनेटर में gx फंक्शन का होल स्क्वायर, फंक्शन gx ही एज इट इज डिफ्रेंशिएशन ऑफ fx माइनस fx एज इट इज डिफ्रेंशिएशन ऑफ gx. और इन सिंपल वे इफ इट इज़ यू वी करके कर दिया, दो फंक्शंस हैं यू वी, दोनों एक्स में हैं, तो डैश इनका डेरिवेटिव क्या होगा, यू डैश वी प्लस यू वी डैश, या यू अपॉन वी है, दोनों एक्स में है तो नीचे वी का स्क्वायर, वी ही एज इट इज यू डैश माइनस वी डैश यू. व्हेन वी सॉल्व द क्वेश्चन द कंसेप्ट विल बी मोर क्लियर. डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, देर आर सम फंक्शंस, फॉर एग्जांपल आपको गिवन है एक्स पावर एन, तो इसका डेरिवेटिव होगा एन आगे आ जाएगा और इसकी पावर एक कम हो जाएगी. अगर मैं कहूँ कि एक्स रेज टू पावर 4 की डिफ्रेंशिएशन क्या होगी, तो आप कहोगे 4 आगे आ गया, एक्स रेज टू पावर एक कम होगी, 3 रह गया. कांस्टेंट फंक्शन की डिफ्रेंशिएशन 0 है. दैट मीन्स अगर मैं कहूँ कि what is differentiation of 5 with respect to x, d by dx of 5 with respect to x will be 0. पॉलिनोमियल फंक्शन है a n x पावर n प्लस a n माइनस 1 x पावर n माइनस 1 एंड सो ऑन a 1 x प्लस a 0. सो पॉलिनोमियल फंक्शन की डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगी, a n कॉन्स्टेंट है एज इट इज, एन आगे आ गया एक्स की पावर एन माइनस 1 प्लस ए एन माइनस 1 कॉन्स्टेंट है एज इट इज, एन माइनस 1 आगे आ गया, एक्स रेज टू पावर एन माइनस 2 हो जाएगी, एक कम हो जानी है, प्लस एंड सो ऑन. एक्स की डिफ्रेंशिएशन एक्स की पावर 1 है तो 1 आगे आ गया, एक्स की पावर 0 होगी तो 1 हो गया, तो ए 1 रह गया, ए 0 कॉन्स्टेंट था, इसकी डिफ्रेंशिएशन 0 होगी.
The next is derivative of some trigonometric functions. For the trigonometric functions, derivative of some trigonometric functions, sin x की डिफ्रेंशिएशन cos x, cos की माइनस sin x, टेंजेंट की secant square x. This you can calculate by first principle also, or you can learn the formulas only. टेंजेंट x की secant square x, cot x की माइनस cosecant square x, secant x की secant x टेंजेंट x, cosecant x की माइनस cosecant x cot x. लॉग और एक्सपोनेंशियल की सप्लीमेंट एक्सरसाइज है आंसर्स के बाद. तो लॉग एक्स की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज 1/x, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन की ई रेज टू पावर एक्स सेम रहती है, ई रेज टू पावर एक्स. दैट वी विल डिस्कस एट द लास्ट, log x and exponential function separately. Let me solve the exercise. The first question is find the derivative of x square minus 2 at x is equal to 10. सो एक्स स्क्वायर माइनस 2 का अगर डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स करेंगे तो 2 आगे आ जाएगा 2x और 2 का 0. ये आ गया एफ डैश एक्स मीन्स 2x एट एक्स इज इक्वल टू 10. एक्स की जगह 10 पुट कर दिया, 2 इंटू 10 20 इज आंसर. सेकेंड इज 99x. 99 कॉन्स्टेंट एज इट इज. एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, देखो एक्स की पावर 1 है, डेरिवेटिव करते हैं तो क्या आता है 1 आ गया आगे, और x रेज टू पावर होगी 1 माइनस 1. दैट मीन्स 1 इंटू एक्स पावर 0, दैट मीन्स 1. x पावर 0 इज 1. सो x का डेरिवेटिव याद रखो विद रिस्पेक्ट टू x 1. सो 99 आ गया. एफ डैश 100, x है ही नहीं तो 99 एज इट इज आ गया. थर्ड क्वेश्चन इज एफ एक्स इज गिवन x, वो आ गया x का डेरिवेटिव. तो x का डेरिवेटिव अभी होता है 1, एफ डैश 1 जो है वो 1 आ गया. फोर्थ क्वेश्चन सेकंड पार्ट इज x माइनस 2, x माइनस 1, x माइनस 2. फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ फॉलोइंग फंक्शन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल आ गया. अब डायरेक्ट डिफ्रेंशिएशन नहीं है, पहले इनको मल्टीप्लाई कर लिया, एक्स स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 2. फर्स्ट प्रिंसिपल की डेफिनेशन होती है बाय थ्योरम 2, एफ डैश एक्स लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स ओवर एच. सो ये बन गया लिमिट h टेंड्स टू 0. पहले फंक्शन में जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ x प्लस एच कर दिया, x प्लस एच स्क्वेयर माइनस 3 इंटू एक्स प्लस एच प्लस 2. ये तो आ गया एफ ऑफ एक्स प्लस एच. जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ x प्लस एच कर दिया, माइनस एफ ऑफ एक्स एज इट इज़ आ गया ये. Then open the square and cancel the opposite terms. Then you will have h square plus 2xh minus 3h left रह गया अपॉन h. h यहाँ से कॉमन आ गया तो रह गया h plus 2x minus 3. So h and h is cancel. You are having h plus 2x minus 3. Now put h is 0, so 2x minus 3 is the डेरिवेटिव. और अगर डायरेक्ट आप चेक करना चाहो तो डायरेक्ट एक्स स्क्वेयर का 2x माइनस 3 एज इट इज एक्स का 1, तो 2x माइनस 3 आंसर आना चाहिए. सो 2x माइनस 3 इज आंसर. नेक्स्ट वी सॉल्व सेम फोर्थ पार्ट. एफ ऑफ एक्स इज गिवन x प्लस 1 ओवर x माइनस 1 बाय फर्स्ट प्रिंसिपल. So by first principle f dash x is limit h tends to 0 f of x plus h minus f of h over h. तो जहाँ जहाँ अब फंक्शन में x है वहाँ वहाँ x प्लस h पुट किया पहले, तो ये बन गया x प्लस h प्लस 1 f x प्लस h माइनस 1 माइनस f of x. f of x is same x plus 1 over x minus 1. Now you can take the LCM, multiply, open the bracket. After multiplying and opening the bracket you are having only माइनस 2h जो लेफ्ट रह गया, माइनस 2h ओवर x प्लस h माइनस 1, ये एलसीएम वाला पार्ट है, ओवर x माइनस 1. h जो है वो कॉमन आके इसके साथ कैंसिल हो गया, तो सिर्फ रह गया 2 ओवर, लिमिट भी पुट कर दी यहाँ पे, 2 माइनस 2 ओवर 0 x माइनस 1. सो x माइनस 1 x माइनस 1 x माइनस 1 स्क्वेयर.
So answer is -2 over x minus 1 whole square. You can also find its derivative by direct applying u upon v form. Now question number 7 is find the, for some constant a and b, find the derivative of x minus a, x minus b. A and b are constant, so we can apply here product rule. दोनों x के फंक्शन है और दोनों प्रोडक्ट में है. सो प्रोडक्ट रूल क्या हो गया? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट. सो इट मीन्स वी आर हैविंग x माइनस ए, एक्स माइनस बी का डेरिवेटिव, x का 1, b का 0, तो ये 1 आ गया. सिमिलरली x माइनस बी एज इट इज, एक्स माइनस ए का डेरिवेटिव, x का 1, a का 0, 1 आ गया. तो x माइनस ए प्लस एक्स माइनस बी, ब्रैकेट ओपन की, 2x माइनस ए माइनस बी. सेकेंड पार्ट इज एफ एक्स इज ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी होल स्क्वेयर. सो एफ डैश एक्स निकालना है इसका. इसमें 2 विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है डिफ्रेंशिएट. 2 जो है वो आगे आ गया ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी, इसकी पावर 2 माइनस 1, 1 रहेगी. अब ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी का फिर से निकालना है, तो 2 ए एक्स प्लस बी का 0, इसका 2ax प्लस बी का 0. सो आंसर इज 4ax, 2 2 ज़ा 4ax, ax स्क्वेयर प्लस b. देन क्वेश्चन नंबर 8 इज x पावर n माइनस ए पावर n ओवर x माइनस ए. ये u बाई v फॉर्म है. u दोनों फंक्शन जो है वो x में है और दे आर रिलेटेड बाय साइन डिवीजन. सो क्या होता है? वी स्क्वेयर एज इट इज, यू अपॉन वी का डेरिवेटिव, डिनोमिनेटर में वी स्क्वेयर, वी ही एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ यू डैश माइनस यू एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ वी. सो व्हाट विल बी दिस? दिस विल बिकम एक्स माइनस ए होल स्क्वेयर, अप्लाइंग दिस रूल, एक्स माइनस ए होल स्क्वेयर, एक्स माइनस ए ही एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ एक्स पावर एन माइनस ए पावर एन माइनस x पावर n a पावर n एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ x माइनस a डिनोमिनेटर का. सो इट इज x माइनस a एज इट इज, x पावर n का डेरिवेटिव n आ गया x पावर n माइनस 1, a पावर n का 0, माइनस x पावर n a पावर n एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ x इज 1, a इज 0, सो दिस विल बी 1. सो दिस इज x माइनस a होल स्क्वेयर, ब्रैकेट ओपन की, ब्रैकेट ओपन करके n माइनस 1 यहाँ से कॉमन आ गया, x पावर n कॉमन आ गया, तो n माइनस 1 एक्स पावर n माइनस एन ए एक्स पावर n माइनस 1 प्लस a पावर n ओवर x माइनस a होल स्क्वायर. क्वेश्चन नंबर 9, द सेकेंड पार्ट इज 5x स्क्वेयर प्लस 3x माइनस 1 x माइनस 1. वन मेथड इज यू कैन मल्टीप्लाई दिस फॉर्म ए, यहाँ से आपके पास बाई क्वाड्रेटिक पावर 4 में इक्वेशन आ जाएगी, उसको डेरिवेटिव निकाल लो उसका, या u इंटू वी प्रोडक्ट रूल लगा दो. सो एफ डैश एक्स, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाया मैंने. फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ दिस, इसका डेरिवेटिव x का 1 आ गया, 1 का 0 होगा, तो ये 1 बन गया, प्लस x माइनस 1 एज इट इज, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, 3 आगे आएगा तो 15x स्क्वेयर, 3x का प्लस 3, 1 का 0, ब्रैकेट ओपन की, मल्टीप्लाई किया, यू विल गेट द आंसर. क्वेश्चन नंबर 9 ही है. फिफ्थ पार्ट इज एक्स रेज टू पावर 4 माइनस 4 माइनस ब्रैकेट में 3 माइनस 4x पावर माइनस 5. सो वन मेथड इज, आप मल्टीप्लाई कर लो, अंदर a की पॉलिनोमियल बना लो और उसको डेरिवेटिव कर दो, या यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगा दो, क्योंकि x पावर माइनस 4 इंटू दो फंक्शंस हैं, दोनों x में हैं, तो प्रोडक्ट रूल लग सकता है. एफ डैश एक्स, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, एक्स रेज टू पावर माइनस 4, डेरिवेटिव ऑफ दिस, इसका निकाल लेते हैं डेरिवेटिव, प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट. सो एक्स रेज टू पावर माइनस 4 एज इट इज, 3 का तो हो गया 0, 3 का 0 हो गया, इसका हो गया माइनस 5 आगे आ गया, x की पावर माइनस 5 माइनस 1 होगी, 3 एज इट इज़, ये वाला टर्म एज इट इज़, एक्स रेज टू पावर माइनस 4 का डेरिवेटिव, माइनस 4 आगे आ गया, एक्स की पावर माइनस 4 माइनस 1,
मतलब एक्स रेज टू पावर एन का डेरिवेटिव क्या होता है, एन आगे आ जाता है, एक्स की पावर एन माइनस वन, एक पावर कम कर देनी है। सो एक्स रेज टू पावर माइनस फोर एज इट इज, ये होगा 20 एक्स रेज टू पावर माइनस सिक्स, 3 माइनस फोर एक्स पावर माइनस फाइव एज इट इज, दिस इज माइनस फोर एक्स पावर माइनस फाइव। सो मल्टीप्लाई दिस 20, बेस ए में पावर्स ऐड होगी, एक्स रेज टू पावर माइनस 10 माइनस 3 फोर ज़ा माइनस 12 एक्स पावर माइनस 5, ब्रैकेट ओपन कर रहा हूँ, 4 फोर ज़ा प्लस 16 एक्स पावर बेस सेम है, पावर्स ऐड होगी माइनस 10। सो दिस इज 20 एक्स पावर माइनस 10, 16 एक्स पावर माइनस 10 विल बिकम 36 एक्स पावर माइनस 10 माइनस 12 एक्स पावर माइनस 5। पावर माइनस है, इसको नीचे ले जाके प्लस में लिख सकते हैं, तो 36 बाई एक्स पावर 10 माइनस 12 बाई एक्स पावर 5 इज द आंसर। Next is derivative of cos x from first principle. Derivative of cos x by first principle. So fx is cos x. By the definition of first principle, f dash x is limit h tends to 0, f of x plus h minus f of x over h. So f dash x हमारा बन गया लिमिट h tends to 0, f of x plus h मीन्स जहाँ x है वहाँ x plus h कर देना है, cos of x plus h माइनस एफ एक्स मीन्स कॉस एक्स ओवर एच। अब यहाँ पे हम सी डी फॉर्मूला लगाएंगे, कॉस सी माइनस कॉस डी, कॉस सी माइनस कॉस डी, सी डी में चौथा फॉर्मूला होता है 2 साइन ऑफ सी प्लस डी बाई टू साइन ऑफ डी माइनस सी बाई टू। सो ये बन गया 2 साइन ऑफ एक्स प्लस एक्स बाई टू साइन ऑफ एक्स माइनस एच बाई टू अपॉन एच। लिमिट यहाँ से आ गया ये 2 साइन ऑफ एक्स प्लस एक्स, 2x हो गया तो 2x बाई टू एक्स हो गया प्लस एच बाई टू, साइन ऑफ यहाँ से रह गया एच बाई टू माइनस एच बाई टू, माइनस बार लिख लिया अपॉन एच। लिमिट माइनस ये 2 जो था ये h के अपॉन कर दिया, दिस 2 इज h अपॉन 2, दिस 2 इज h अपॉन 2। सो साइन ऑफ माइनस साइन ऑफ एक्स प्लस एच बाई टू साइन ऑफ एच बाई टू एच बाई टू, लिमिट साइन ऑफ एच बाई टू अपॉन एच बाई टू, एच टेंड्स टू 0 या एच बाई टू टेंड्स टू 0 विल बिकम 1। तो यहाँ पे हमने पुट कर दिया इसको 0, इसकी जो 0 होगी तो माइनस साइन एक्स आ गया, और इसकी लिमिट जो है वो एच बाई टू के साथ, ये लिमिट वाले पार्ट में हमने पढ़ा हुआ है, इसकी लिमिट जो है वो 1 होती है। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन एक्स ओवर एक्स इज 1। सो एफ डैश एक्स क्या आ गया माइनस साइन एक्स। सिमिलरली यू कैन फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। नेक्स्ट इज गिवन क्वेश्चन नंबर 11, यू हैव टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। इसमें बाय फर्स्ट प्रिंसिपल नहीं है रिटर्न, सो वी विल फाइंड डायरेक्ट डिफरेंशिएशन, साइन एक्स कॉस एक्स दोनों x के फंक्शन है, वी विल अप्लाई प्रोडक्ट रूल, f डैश एक्स साइन एक्स एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। सो साइन एक्स एज इट इज, कॉस का माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स एज इट इज, साइन का कॉस एक्स, मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर एक्स माइनस में हो गया कॉस स्क्वायर एक्स, ये यहाँ से बन गया। ये हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स इज कॉस ऑफ 2x, 2a formulas, so it is cos of 2x. Then third part is given 5 secant x plus 4 cos x, इसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो इसमें तो प्लस साइन है तो इसकी डिफ्रेंशिएशन अलग, इसकी डिफ्रेंशिएशन अलग हो जाएगी, 5 secant x की और cos x की अलग हो जाएगी। सो f डैश x विल बी 5 एज इट इज, secant x का डेरिवेटिव secant x टेंजेंट x प्लस 4 एज इट इज, cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x। यू कैन जस्ट रीअरेंज गेट आंसर। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 5th पार्ट, 3 cot x प्लस 5 cosecant x, 3 कॉन्स्टेंट एज इट इज, cot का माइनस cosecant स्क्वायर x प्लस 5 एज इट इज, cosecant का माइनस cosecant x cot x। So rearrange, just rearrange and take common, you will get the answer.
Seventh part is fx is given 2 tangent x minus 7 secant x. So डेरिवेटिव f dash x is 2 टेंजेंट x का होता है secant square x minus 7 secant का secant x tangent x. You can take secant common or you can leave here. So this is about the exercise 13.2. Thank you.